Hello everyone, welcome back to the class, and this is me Ankita Kabra. So today we are going to start a new unit, that is coordination compounds. Okay, now this unit is of inorganic topic. Okay, inorganic topic का unit है ये, and the unit is very interesting from the examination point of view and from the learning perspective. Okay, this unit is quite different from all the other units which we have to learn. Okay, so please be attentive when you watch the videos so that you will get a complete and clear, crystal clear conceptual understanding. Okay, so without wasting any more time, let's get started. Now, coordination compound is the most amazing topic of inorganic chemistry. This is a modern topic. Okay, uh, we learn transition elements and inner transition elements, right? The very first unit of C2, right? तो उसमें हमने देखा था that transition metal have a property to form complexes, right? Complex compounds बनाते हैं, है ना? So जब ये complex compound बनते थे transition metals में in earlier days, so that are known as complex compounds. But now in modern terminologies, there is coordination compounds. Okay. So there is a branch in chemistry which deals with the study of this coordination compounds, which is known as coordination chemistry. Fine. Now in nature we come across number of coordination compounds, like if we consider chlorophyll, right? So chlorophyll is also a coordination compound. It is also a complex of the metal which is called magnesium. Okay, magnesium का metal है जो बनाता है आपका chlorophyll. Coordination compound जो बनता है, that is chlorophyll. Hemoglobin is also a coordination compound. Metal कौन सा है इसमें? इसमें जो metal है that is iron. Okay, then you have vitamin B12. Okay, जिसमें कौन सा metal है? Cobalt. Again, this is a coordination compound. Fine. So this coordination compound, they found a number of application in different fields, right? In medicinal chemistry also, there is a coordination compound called cisplatin. Okay, we will learn that in a detail in a coming videos. So cisplatin करके एक coordination compound है, which is very useful in medicinal chemistry. Okay, I'm just giving you the example. Okay, there are a number of other compounds also which is used in medicinal chemistry, or they have different applications in that particular field. Then you have electroplating, then textile dyeing, okay, then analytical reagents, industrial catalyst. All this involves coordination compound. So this unit and this particular coordination chemistry overall is a very huge topic. Okay, but we will learn that from the examination point of view. So the unit is very interesting, guys, very interesting. Okay, so please be attentive in the videos. So now what is coordination compound? What is complex compound? Okay, so coordination compounds are consist of the central metal ion or central metal atom which is surrounded by number of atoms or molecules. Okay, एक ऐसा compound जिसमें सेंट्रल मेटल एटम जो है या फिर सेंट्रल मेटल आयन जो है दैट इज सराउंडेड बाय डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स or molecules. Okay, now this is example of coordination compound. Okay, CuNH3 by 4 dipositive. Fine. Now this Cu is your central metal ion, right, which is CMI, जिसको हम लिखते हैं central metal ion, right? This NH3, ये जो NH3 है ammonia molecule, this is your atom or molecule which is surrounded to your central metal ion. कितने NH3 molecules लिए हमने? 4. So this 4 is coordination number. All this term we will learn in the coming videos. Okay, for now just remember what is it. Okay, हम ये सारी terms details में आगे पढ़ने वाले हैं. Now this NH3 is called as ligands. Okay, now ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हर बार NH3 ही रहेगा. यहाँ पे कोई भी दूसरा मॉलिक्यूल एटम आयन रह सकता है. ओके, any other different atom, any other different molecule, any other different ion. Okay, but the condition is that
कि ये जो यहाँ पे मॉलिक्यूल या एटम या आयन रहेगा, इट इज कैपेबल ऑफ डोनेटिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू योर सेंट्रल मेटल आयन. ठीक है, सो दैट टाइम इट इज योर लिगैंड, जिसको हम बोलेंगे लिगैंड्स. फाइन. सो फॉर नाउ दिस इज एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसमें दिस इज योर सेंट्रल मेटल आयन. ओके, कॉपर हो सकता है, आयरन हो सकता है, निकेल हो सकता है, एनीथिंग एल्स. ओके, क्रोमियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. दिस NH3 कितने हैं? 4 मॉलिक्यूल्स है विच इज सराउंडेड टू बाय टू दिस कॉपर, इस तरीके से. ओके, ऐसे 4 मॉलिक्यूल सराउंडेड रहेंगे. यहाँ पे NH3, then here it is NH3, then here it is NH3, then here it is NH3. Okay, fine. And this is a charge on your complex. Dipositive, this is charge which is present on your complex. Okay, so coordination compounds are the type of addition compounds only. Okay, inorganic compounds में actually there are two different compounds. एक होता है addition compound और एक होता है आपका normal salt. Okay, so we will see that कि कैसे होता है. देखो क्या होता है ना एक्चुअली, वेट. इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, एक होता है एडिशन कंपाउंड जिसको हम मॉलिक्यूलर कंपाउंड भी बोलते हैं. ओके, और एक होता है आपका नॉर्मल सॉल्ट. एक होता है आपका नॉर्मल सॉल्ट. नॉर्मल सॉल्ट कैसे बनता है? एसिड प्लस बेस वाला. ठीक है, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर. तो दैट इज योर नॉर्मल सॉल्ट. एसिड प्लस बेस दैट गिव्स यू सॉल्ट प्लस वाटर. ओके, और जो आपका एडिशन कंपाउंड होता है या फिर मॉलिक्यूलर कंपाउंड होता है, उसमें क्या होता है? उसमें एक फिक्स प्रपोर्शन होता है, राइट? उसमें एक फिक्स प्रपोर्शन में, स्टोइचियोमेट्रिक कॉन्सेंट्रेशन में हम उसमें मॉलिक्यूल्स लेते हैं, राइट? तो दैट इज प्रेजेंट इन फिक्स प्रपोर्शन. सो दैट थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड कि एडिशन कंपाउंड में हो सकता है वहां पे दो सॉल्ट कंबाइन किए गए हो इन फिक्स प्रपोर्शन. सो दैट इज योर एडिशन कंपाउंड. तो एडिशन कंपाउंड्स आर ऑफ टू टाइप्स. एक होता है डबल सॉल्ट और एक होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. ठीक है, एक होता है डबल सॉल्ट और दूसरा होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. फाइन. अभी जो डबल सॉल्ट होता है, ये क्या करता है? इसकी कैपेबिलिटी है कि ये आइडेंटिटी लूज कर देता है इन सॉल्यूशन. मतलब कंसिडर आपके पास पोटैश एलम इज द एग्जांपल ऑफ डबल सॉल्ट. ठीक है, पोटैश एलम इज द एग्जांपल ऑफ डबल सॉल्ट. आई होप एलम पता है आपको किसे बोलते हैं, राइट? सो पोटैश एलम जो है दैट इज एग्जांपल ऑफ डबल सॉल्ट. अभी ये क्या करता है? ये इट रिटेन इट्स आइडेंटिटी व्हेन इट इज इन सॉलिड स्टेट. ये जब सॉलिड स्टेट में रहेगा तो ये अपनी आइडेंटिटी रिटेन करेगा, राइट? लेकिन जैसे ही हम इस पोटैश एलम को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये क्या कर देगा? ये अपनी आइडेंटिटी लूज कर देगा. ओके, इट इज alum lost its identity in aqueous solution. तो ये चीज याद रखना इन केस ऑफ डबल सॉल्ट कि इन aqueous solution they lose their identity. ओके, अभी आइडेंटिटी लूज करेंगे मतलब we will get the taste of its पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंट आयन, राइट? अभी पोटैश एलम में जितने भी एटम्स होंगे प्रेजेंट, जब हम उसको पानी में मिलाएंगे तो इट इज पोटैश एलम नहीं रहेगा इन एक्वियस सॉल्यूशन, राइट? सो इट विल डिसोसिएट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट आयंस. जिससे भी वो बना है वो उसमें डिसोसिएट हो जाएगा एंड वी विल गेट द टेस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर आयन, राइट? बट इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिस इज नॉट द केस. लाइक अभी हमने देखा CuNH3/4, राइट?
हमको ये दिस इज आवर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड राइट, तो ये हमको मिला था ना Cl2, ओके, दिस इज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अभी क्या होगा जब हम इसको डिसॉल्व करेंगे ना, नाउ दिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड रिटेन इट्स आइडेंटिटी इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज एन एक्वियस स्टेट। मतलब जब आप इस कंपाउंड को पानी में भी डिसॉल्व करोगे ना तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही रहेगा, इट विल नॉट डिसोसिएट इनटू Cu डाई पॉजिटिव या NH3 पॉजिटिव, NH3 और Cl नेगेटिव, इस तरीके से डिसोसिएट नहीं होगा, ठीक है। इट विल गिव यू वन कॉम्प्लेक्स आयन एंड वन काउंटर आयन, ओके। तो काउंटर आयन और कॉम्प्लेक्स आयन कैसे होगा, Cu NH3 by 4 dipositive, दिस इज योर कॉम्प्लेक्स आयन, ओके। तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स आयन की आइडेंटिटी सेम रहेगी, राइट। हम अगर इसको Cu के लिए टेस्ट करें, हमारे पास होता है ना Cu के लिए एक पर्टिकुलर टेस्ट होती है, देन निकेल के लिए एक पर्टिकुलर टेस्ट होती है जो हम करते हैं लैब में, ओके। अगर हम वैसी टेस्ट यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे हमको कॉपर की कोई टेस्ट नहीं मिलेगी, क्यों, क्योंकि कॉपर इज प्रेजेंट इन as a complex ion, okay, it is not present as a constituent or single ion, okay। सो इस तरीके से आपको एक कॉम्प्लेक्स मिलेगा और यहाँ पे मिलेगा आपको ट्वाइस Cl नेगेटिव, तो दिस इज योर काउंटर आयन एंड दिस इज योर complex ion. So coordination compound does not lose its identity in aqueous solution, okay। So ये चीज याद रखना। एडिशन कंपाउंड, मॉलिक्यूलर कंपाउंड फिक्स प्रोपोर्शन में होते हैं, राइट। डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये दो तरह के एडिशन कंपाउंड्स है। डबल सॉल्ट में इट लूज इट्स आइडेंटिटी इन एक्वियस सॉल्यूशन एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इट डज नॉट लूज इट्स आइडेंटिटी इन एक्वियस सॉल्यूशन, ओके। बोलने का मतलब ये है कि डबल सॉल्ट में द जो भी आपका सॉल्ट है दैट डिसोसिएट्स कंप्लीटली इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट आयंस, ओके, दैट्स व्हाई इट लूजेस इट्स आइडेंटिटी। बट इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये चीज नहीं होती है, ओके। सो वी विल सी द एग्जांपल नाउ। ये तो एक आइडिया था आपको बताने के लिए कि क्या हो रहा है, ओके। सो सी कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर स्टेबल कंपाउंड्स, जैसे मैंने बोला कि व्हाट इज योर what we can call as addition compounds, right? So two or more stable compound अगर same fixed proportion में हम ले रहे हैं, fixed ratio में हम ले रहे हैं, so that will lead to two types of substances. First one is double salt and another one is coordination complexes. Double salts जो होते हैं that dissociates in water completely into simple ions. Now Mohr salt is also example of double salt, okay. Potash alum is also the example of double salt. One more is there, carnallite is also example of double salt. तो ये ना सारे एग्जाम्पल याद रख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभार क्या होता है डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ MCQs कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डबल सॉल्ट, तो आपको पता होना चाहिए फिर क्या है, ओके। तो मोहर सॉल्ट इज अ डबल सॉल्ट, कार्नालाइट, पोटाशियम, ऑल इज अ डबल सॉल्ट। अभी मोहर सॉल्ट का देखो फॉर्मूला इज FeSO4 NH4 by 2 SO4.6H2O. So okay, so ये जो salt है this is present as crystalline solid. But when you dissolve this in water, तो ये क्या करेगा, this will we can say that this will get dissociate into its simple ion. जितने भी ions यहाँ पे present है ना ये उसमें dissociate हो जाएगा, okay। So see here, यहाँ पे क्या है आपका Fe डायपॉजिटिव है, डिसोसिएट हो गया है वाटर के अंदर, ओके। देन NH4 पॉजिटिव मिल गया आपको, देन यू विल गेट SO4 डाई नेगेटिव, राइट। तो अगर हम जब हम इसका एक्वियस सॉल्यूशन बना देंगे और उस एक्वियस सॉल्यूशन में वी विल हम टेस्ट करेंगे आयरन की Fe डायपॉजिटिव आयंस के लिए या फिर अमोनियम आयंस के लिए, तो हमें वो टेस्ट पॉजिटिव मिलेगी, ओके। क्यों, बिकॉज दैट सॉल्ट डिसोसिएट इनटू इट्स सिंपल आयन, इसीलिए हमको वो टेस्ट पॉजिटिव मिलेगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मोहर सॉल्ट था इसने अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी इन एक्वियस सॉल्यूशन, ओके, क्योंकि इसने आयंस बना दिए, राइट। सो दिस इज व्हाट हैपनिंग विद डबल सॉल्ट। कार्नालाइट का जो फॉर्मूला है दैट इज KCl MgCl2 KCl MgCl2 dot 6H2O,
This is the formula for Kalnalite. Okay. Now, what is coordination complex then? Compound किसको बोलोगे? Which dissociate in water with at least one complex ion and that does not lose its identity. Okay. So this is the example. A complex है, coordination complex है, K4FeCN/6. इसका जो नाम है that is potassium hexacyanoferrate. नेमिंग हम आगे पढ़ेंगे, so don't bother about it now. तो इसमें क्या होगा, जब ये डिसोसिएट होगा ना, तो हमको क्या मिलेगा? वी विल गेट 4 पोटेशियम आयंस, 4K positive, aqueous, and we will get a complex ion that is FeCN/6, CN/6 tetra negative. Okay, so this is a complex ion and this one is counter ion. ठीक है, मतलब कॉम्प्लेक्स आयन जो आपको मिला उस पे चार्ज है टेट्रा निगेटिव का, वो टेट्रा निगेटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए हमें काउंटर आयंस चाहिए विच विल बी कैटायन, राइट? क्योंकि निगेटिव रहेगा तो हमें पॉजिटिव आयन चाहिए, पॉजिटिव रहेगा तो हमें निगेटिव आयंस चाहिए. सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज काउंटर आयन विच इज गोना काउंटर दिस निगेटिव चार्ज. ओके, और फिर वो आपका ये कॉम्प्लेक्स बना देगा. और इस फिर ये जो कॉम्प्लेक्स है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, इस पे कोई चार्ज नहीं है. फाइन. So that is your complex ion and this one is your counter ion. So in this way, coordination complexes or coordination compounds, when they dissociates in water, they does not lose its identity. And we will not gonna मतलब पॉजिटिव टेस्ट नहीं मिलने वाली हमको फॉर CN नेगेटिव आयंस या फिर Fe डाइपॉजिटिव, राइट? अभी आप बोलोगे कि हमें इस कंपाउंड में वी हैव टू टेस्ट फॉर Fe डाइपॉजिटिव एंड CN नेगेटिव, क्योंकि इसमें ये आयंस है तो हमें ये टेस्ट पॉजिटिव मिलनी चाहिए, बट हमें ये टेस्ट पॉजिटिव नहीं मिलेगी. क्यों नहीं मिलेगी? बिकॉज दे आर प्रेजेंट एज अ कॉम्प्लेक्स आयन, दे आर नॉट प्रेजेंट एज अ कंस्टिट्यूएंट आयन. वो डिसोसिएट ही नहीं हुए in a simple ions, right? So that's why the test for CN negative and Fe are negative in this case. Okay, I hope this much is clear. बहुत ही सिंपल है, बस आपको ये समझना है कि कहाँ पे आइडेंटिटी लूज हो रही है और कहाँ पे रिटेन हो रही है. ठीक है, तो इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आइडेंटिटी रिटेन हो रही है in aqueous solution as well as in solid state also. ओके, एग्जाम्पल्स याद रखना, एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. कभी कभार देयर इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन ऑन डिफरेंशिएट बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. So you can write this definition, you can write lose identity, it does not lose identity, we will get the test for constituent ion, it does not get the test for constituent ion, then you have examples, right? So इसीलिए you have to learn 2 to 3 examples for each, क्योंकि अगर आप एक भूल जाओ तो एटलीस्ट टाइम पे एक याद आ जाए विद द फॉर्मूलाज. ओके, so now we will see what are ligands and how this coordination compounds are forms. Okay, now जो हमने देखा था at the very first CuNH3/4 वाला एग्जाम्पल, तो उसमें हमने देखा था कि NH3 अमोनिया जो है, the 4 molecules of ammonia are surrounded to copper, right? So this ये जो है that is called as ligands. So the species which are surrounding the central metal atom or ion, they are called as ligands. ठीक है, लेकिन ये ligands जो है they are directly linked to the central metal ion. ठीक है, ये जो ligands, जो भी आयन, जो भी एटम, जो भी मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट होगा, वो डायरेक्टली लिंक होगा किसको? आपके सेंट्रल मेटल आयन को. ओके, किस बॉन्ड से? बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड. आई होप आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड पता है. व्हाट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड? द बॉन्ड इन विच द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इज डोनेटेड बाय सिंगल एटम और ग्रुप, राइट? अभी ए और बी है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना है, और जो बॉन्ड बना है उसमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर है दैट इज शेयर्ड बाय बी. ठीक है, तो क्या होगा? बॉन्ड कैसे दिखेगा? ए
कोऑर्डिनेट बॉन्ड हम डिनोट करते हैं बाय एरो, राइट, इस तरीके से, इंडिकेटिंग कि जो लोन पेयर है वो किससे आई है, बी से आई है, और जो हेड होता है ना एरो का, दैट इज टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. फाइन. So it is a formation of coordinate bond occurs when shared electron pair is contributed by ligands. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर कौन डोनेट करने वाला है, लिगैंड्स डोनेट करने वाला है. नो मैटर आपके लिगैंड पॉजिटिव है, आपके लिगैंड निगेटिव है, आपके लिगैंड न्यूट्रल है, जब तक वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है टू द सेंट्रल मेटल एटम, दे आर लिगैंड्स. ठीक है, दे कैन बी पॉजिटिव, दे कैन बी निगेटिव, दे कैन बी न्यूट्रल, तीनों तरह के लिगैंड्स होते हैं. फाइन. सो अभी जो हमने देखा, अभी हमने जैसे कि हमने बोला कि लिगैंड डोनेट कर रहा है किसको, मेटल को, राइट. तो मेटल तो यहाँ पे फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ और लिगैंड इलेक्ट्रॉन रीच. सो बेसिकली अगर हम देखे तो ये तो लुईस एसिड बेस रिएक्शन हो गई ना, लुईस एसिड प्लस लुईस बेस. जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है दैट इज योर मेटल आयन, दैट विल एक्ट एज लुईस एसिड, राइट, बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का काम कर रहा है. और जो आपका लिगैंड है दैट विल एक्ट एज लुईस बेस. क्यों? बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन रीच है, दैट विल एक्ट एज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर to the central metal ion, to the Lewis acid. So that's why it is indirectly it is a Lewis acid base interaction and nothing else. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, acid base interaction. Which acid base? Lewis acid base. ठीक है. So electron your ligand, they are electron pair donors, and your central metal ion, they are electron pair acceptors because they are electron deficient. Okay. सो आई होप दिस मच इज क्लियर. कौन सा लुईस बेस है, कौन सा लुईस एसिड है, आपको समझ में आ गया हो गया. ओके. तो बेसिकली क्या हो रहा है ना यहाँ पे, देखो कंसिडर कीजिए, अगर हम एक बात करें, वेट, ये लिगैंड है, ये लिगैंड का ऑर्बिटल है in which it has a lone pair of electron. Okay, and this is your metal ion. ये मेटल का ऑर्बिटल है जो कि एम्प्टी है, राइट. इट शुड बी एम्प्टी ना, बिकॉज लिगैंड उसको डोनेट करने वाला है. अब लिगैंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा तो मेटल एटम के पास स्पेस भी तो होनी चाहिए ना वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अकोमोडेट करने के लिए. तो इट्स मस्ट हैव एम्प्टी ऑर्बिटल विद इट, तभी जाके बॉन्ड बनेगा, राइट. तो ये लिगैंड ने मेटल आयन को डोनेट किया, राइट. सो देयर इज अ ओवरलैपिंग बिटवीन लिगैंड एंड मेटल, और फिर ये बॉन्ड बना आपका मेटल लिगैंड बॉन्ड, जिसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, राइट, इस तरीके का. सो दिस इज नथिंग बट लुईस बेस एसिड बेस इंटरैक्शन, लुईस एसिड लुईस बेस इंटरैक्शन. तो मेटल का जो ऑर्बिटल है वो एम्प्टी होगा, लिगैंड का जो ऑर्बिटल है वो फिल्ड होगा, और ये वाले फिल्ड ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन पेयर अकोमोडेट हो गए इन एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ मेटल. ओके. So now we will see in detail what are ligands. Okay. So ligand का definition तो हमने पढ़ ही लिया. They are molecules or ions which are coordinated to central metal atom or ion in the coordination complex are called as ligands. ऐसे molecules, ऐसे ion जो कि सेंट्रल मेटल एटम को कोऑर्डिनेट है, किसमें, कॉम्प्लेक्स में, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में, दैट आर कॉल्ड एज लिगैंड्स. Now there are different types of ligands. अभी ये टाइप किस पे डिपेंड करता है, they depend on the number of electron donor atoms ligands have. मतलब जो आपका लिगैंड है, जो आपका मॉलिक्यूल है, उसमें किस टाइप का डोनर एटम है, कितने डोनर एटम है. On that basis ligands are classified into three types. First one is monodentate ligand, then polydentate ligand, and then ambidentate ligand. अभी मोनोडेंटेड से कुछ समझ में आ रहा है, मोनो में सिंगल, विच इज मोनोडेंटेड लिगैंड इज आल्सो नोन एज यूनिडेंटेड लिगैंड. ओके, मोनोडेंटेड को यूनिडेंटेड भी बोलते हैं, याद रखना. नाउ व्हाट इज इट डेंटेड,
हर लिगैंड के एंड में देयर इज डेंटेड, ओके, तो इसको बोलते हैं डेंटिसिटी। डेंटिसिटी मतलब इट इज अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स सिंगल टूथ, विच मीन्स टूथ, ओके। मतलब मोनोडेंटेड इंडिकेट्स कि वहां पे सिर्फ एक डोनर एटम है। फाइन, एक डोनर एटम है, मतलब कंसिडर दिस इज योर मेटल एटम एंड दिस इज योर लिगैंड NH3, ओके। यहाँ पे सिर्फ एक डोनर एटम है, दैट इज नाइट्रोजन, बिकॉज नाइट्रोजन हैज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। तो नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया मेटल को, राइट। तो मेटल हमेशा जब भी अमोनिया आएगा तब किसके साथ अटैच होगा? नाइट्रोजन के साथ ही अटैच होगा ना। हाइड्रोजन के पास तो लोन पेयर है नहीं, तो हाइड्रोजन तो बॉन्ड नहीं बनाएगा, राइट। सो कौन बॉन्ड बनाएगा? नाइट्रोजन। सो कितने टूथ है? अमोनिया अगर कोई मॉलिक्यूल है, कंसिडर अमोनिया है, तो इसके पास कितने टूथ है टू बाइट मेटल एटम? दैट इज सिंगल टूथ, राइट, क्योंकि इसके पास एक ही डोनर एटम है। अगर किसी के पास दो डोनर एटम होते हैं तो बाइडेंटेड, मतलब इंडिकेट्स कि वहां पे टू टूथ है, जिस एटम से आपका मेटल एटम बाइट हो सकता है, राइट। सो इन दैट केस इट इज यूज एज डेंटेड, ग्रीक वर्ड है, डोंट गो इन दैट डीप, ओके। सिर्फ मैंने बता दिया आपको कि डेंटेड का मतलब क्या है। इट इंडिकेट्स कि कितने एटम्स है, डोनर एटम्स कितने हैं, फाइन। सो मोनोडेंटेड मतलब सिंगल, पॉलीडेंटेड मतलब मोर देन टू, ओके, मोर देन सिंगल, टू और मोर डोनर एटम्स जहां पे होंगे उसे हम बोलेंगे पॉलीडेंटेड। एंड देन वी हैव एम्बीडेंटेड, ओके। सो we will see each of them in detail now. Monodentate ligand. So monodentate ligand is the one where single donor atom, याद रखना single, एक ही है, okay, shares electron pair to form a coordinate bond with central metal ion. मोनोडेंटेड लिगैंड्स मतलब ऐसे लिगैंड जिसमें सिंगल डोनर एटम प्रेजेंट होगा, और वी कैन से दैट जो अटैचमेंट साइट है लिगैंड का और मेटल एटम का, दैट इज सिंगल, एक ही अटैचमेंट साइट होगा लिगैंड पे, ओके, सिंगल अटैचमेंट साइट, सिंगल साइट। सो दैट इज मोनोडेंटेड लिगैंड। मतलब कोई भी मेटल अगर उसके पास सराउंडिंग में मोनोडेंटेड लिगैंड है तो वो सिर्फ एक ही जगह से बाइंड हो सकता है, एक ही डोनर एटम बाइंड कर सकता है, ओके। So these are some monodentate ligand examples: negative ion, positive ions, and these are some neutral molecules. तो धीरे धीरे चार्ज याद हो जाएंगे and you have to memorize the charges because आगे इसका काम पड़ेगा, okay? तो Cn negative, this is cyanide, okay? OH negative, hydroxide, O di negative, oxide, then nitrite, positive में nitrosilium, then carbon monoxide, then ammonia, then water, then hydroxylamine. All these are monodentate ligand, okay. You have halogen also, Cl negative, Br negative, then fluoro, F negative, okay. All these are negative ions, negative monodentate ligands, because इसमें क्या है, attachment कहाँ से होगी? Single atom से होगी। Consider ammonia, अमोनिया में नाइट्रोजन विच हैज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये डोनेट करेगा। वाटर में ऑक्सीजन है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये डोनेट कर देगा मेटल एटम को, राइट। इसमें हाइड्रोक्साइड में अगेन ऑक्सीजन वी हैव, तो ये डोनेट कर देगा। Cn में नाइट्रोजन डोनेट करेगा या कार्बन डोनेट कर देगा, ओके। तो एट अ पॉइंट एक ही डोनेट करेगा, दैट इज द पॉइंट, ओके। सो दैट इज मोनोडेंटेड लिगैंड। नेक्स्ट इज पॉलीडेंटेड लिगैंड। अभी पॉलीडेंटेड लिगैंड में ना ऐसे लिगैंड्स होते हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा डोनर एटम आपके सेंट्रल मेटल आयन को लिंक्ड होते हैं, ठीक है। मतलब एक से ज्यादा डोनर साइट होती है, एक से ज्यादा अटैचमेंट साइट होती है, ओके। सो क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा अटैचमेंट साइट है, एक से ज्यादा डोनर एटम्स होते हैं, तभी इस ये जो लिगैंड है ये कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं? रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं अराउंड योर सेंट्रल मेटल आयन, ओके। एंड दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज चिलेट्स। इन स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? चिलेट्स बोलते हैं, ठीक है। कंसिडर कीजिए अगर दो डोनर एटम्स है, आपका लिगैंड है, कोई मॉलिक्यूल है जिसमें देयर आर टू डोनर एटम, देयर आर टू साइड्स ऑफ अटैचमेंट,
सो दैट इज नोन एज बाइडेंटेड लिगैंड. उसको क्या बोलते हैं? बाइडेंटेड लिगैंड. Polydentate ligand is classified into different ligand, that is bidentate, tridentate, tetradentate, hexadentate, depending on the number of donor atoms. Okay, so these are the example of bidentate: ethylene diamine and oxalate ion. So ethylene diamine में देखो, this is the structure of ethylene diamine: CH2 CH2 NH2 NH2. Okay, so this nitrogen has also lone pair of electron and this nitrogen also has lone pair of electron. तो ये भी donate करेगा और ये भी donate करेगा, right, to your metal atom. So यहाँ पे दो sides of attachment है ना. यहाँ पे दो donor atoms है because दोनों के पास lone pair है, तो दोनों ही donate कर सकते हैं और दोनों ही donate करेंगे, right. तो अभी आप देखो, it is gonna form a ring including this metal atom. कितने membered ring बन गई? 1 2 3 4 and 5, right. 5 membered ring बन गई. So this is known as chelate. ये इस कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं हम? चिलेट. और ऐसे लिगैंड जो चिलेट बनाते हैं, जो ऐसे रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, दे आर नोन एज चिलेट लिगैंड्स, चिलेटिंग लिगैंड्स. वी कैन कॉल दैट एज चिलेटिंग लिगैंड्स. जो पॉलीडेंटेड लिगैंड होते हैं, जनरली दे आर चिलेटिंग लिगैंड्स ओनली, क्योंकि वो रिंग बनाते हैं. ओके, नाउ ऑक्सैलेट आयन, COO negative, COO negative, right? So this oxygen is also act as donor. This oxygen will also act as donor to your metal atom, right? तो again यहाँ पे भी कितने membered ring बन गई? 5 membered. 1 2 3 4 and 5, right? So इस तरीके से there is a formation of chelate. और जब chelate बनता है ना, तो that complex is much more stable. ठीक है, क्योंकि रिंग बन रही है ना. सो दैट इज मोर स्टेबल देन द कॉम्प्लेक्सेस एंड द कंपाउंड्स व्हिच आर फॉर्म बाय मोनोडेंटेड लिगैंड्स. फाइन. तो आई होप आपको पॉलीडेंटेड लिगैंड का मतलब समझ में आ गया. पॉली मतलब मेनी, जहां पे एक से ज्यादा डोनर एटम प्रेजेंट हो, एक से ज्यादा साइट ऑफ अटैचमेंट प्रेजेंट हो. फाइन. सो दिस इज नाउ ट्राइडेंटेड लिगैंड. किसको बोलेंगे हम? तो ट्राइडेंटेड में क्या होगा? जहां पे 3 डोनर एटम है, जहां पे 3 साइड्स ऑफ अटैचमेंट है, राइट. सो दिस इज डाइथिलीन ट्राइमाइन, जिसका एब्रिविएशन है डाइन, DIEN. ओके, क्योंकि इथिलीन डायमाइन को हम EN लिखते हैं. सो दिस इज डाइथिलीन ट्राइमाइन, इसलिए डाइन. ओके, सो देखो, अभी ये भी डोनेट कर सकता है, ये भी डोनेट करेगा और ये भी डोनेट करेगा, right. So all this nitrogen atom donates its lone pair of electron to this metal atom. तो कितने डोनर एटम हो गए? 3. कितने साइड्स ऑफ अटैचमेंट हो गई? 3. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ट्राइडेंटेड लिगैंड. फाइन. अभी यहाँ पे 2 रिंग्स बनी, देखो. एक तो ये this 1 2 3 4 5, this one and this one, 1 2 3 4 5, right. इन टेट्राडेंटेड लिगैंड क्या होगा? टेट्रा है, मतलब कितने साइड्स ऑफ अटैचमेंट होंगे? 4 साइड्स ऑफ अटैचमेंट. कितने डोनर एटम्स होंगे? 4 डोनर एटम्स होंगे, राइट. सो दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन. ओके, ऑल दिस डोनेट्स इट्स लोन पेयर टू मेटल एटम. नाम क्या है? ट्राइथिलीन टेट्रामाइन. नाउ दिस इज हेक्साडेंटेड लिगैंड. हेक्सा मतलब कितने अटैचमेंट? 6. ओके, कितने डोनर एटम? 6. EDT है, आपने नाम सुना होगा, इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसिटेट. ये लिगैंड बहुत इंपॉर्टेंट है. स्ट्रक्चर याद करना है आपको इस लिगैंड का, आपको इस लिगैंड का नाम याद करना है. ओके, इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसिटेट. स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है गाइस. अभी इसमें कौन से डोनर एटम है वो देखते हैं. दिस वन ऑक्सीजन. देयर आर 4 ऑक्सीजन एटम, तो ये चारों भी दे विल एक्ट एज अ डोनर, and 2 nitrogen, this one and this one. Okay, so all this atom will act as a donor atom. They will provide a site of attachment to the metal atom. तो यहाँ पे भी रिंग बनेगी, यहाँ पे भी चिलेट्स बनेंगे. ओके, यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा when this donor atom donates its lone pair of electron to the metal atom. फाइन. मतलब अगर हम एक कॉम्प्लेक्स ले,
कॉपर कंसिडर करते हैं, ठीक है, कॉपर है और कॉपर को EDTA लिगैंड अटैच्ड है, लिंक है बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। सो दैट मीन्स कि ये EDTA जो कॉपर को अटैच्ड है, कितने साइड्स ऑफ अटैचमेंट में अटैच्ड है? 6, ठीक है, साइड्स ऑफ अटैचमेंट कितनी है? 6 है। फाइन, सो आई होप दिस मच इज क्लियर। अगर हम बात करें निकेल की, निकेल इज देयर और निकेल के बाद में लिखा है EN, दैट मीन्स निकेल के सराउंडिंग में कौन है? इथिलीन डायमाइन है, राइट right? और इथिलीन डायमाइन ने कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए निकेल के साथ? 2, बिकॉज ये बाइडेंटेड लिगैंड है। ये कौन सा लिगैंड है? बाइडेंटेड लिगैंड है, राइट right? तो उसने 2 बॉन्ड बनाए। इन द सेम वे EDTA ने कितने बॉन्ड बनाए कॉपर के साथ? 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, क्योंकि उसमें 6 डोनर एटम है, राइट। सो दैट इज लिगैंड, दैट इज लिगैंड कि वो एक्चुअली कितने बॉन्ड बना के लिंक्ड हो रहा है आपके सेंट्रल मेटल एटम के साथ, ओके। कंसिडर्ड अगर कहीं पे आपका आयरन है, आयरन है, Fe इज देयर, ओके, और ऑक्सैलेट ऐसा लिखा है, ठीक है। अभी ऑक्सैलेट कौन सा लिगैंड है? बाइडेंटेड लिगैंड है, मतलब ये कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा आपके Fe के साथ? 2। फाइन, so that is the thing which you have to keep in mind. Fine, okay, so moving further, so ये याद रखना कि कौन सा लिगैंड किस कैटेगरी में आता है, उसके पास कितने डोनर एटम है। फाइन, क्योंकि ये याद नहीं रहेगा तो आगे जब हम कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ेंगे तो उसमें दिक्कत होगी, ठीक है। तो बाइडेंटेड लिगैंड कौन से है, यू हैव टू मेमोराइज दैट। इथिलीन डायमीन है, ऑक्सैलेटो है, ग्लासिनेटो है, ओके, सो यू हैव टू मेमोराइज दोस थिंग। EDTA कितना कितना डेंटेड है? हेक्साडेंटेड है। देन डाइथिलीन ट्राइमाइन कितना है? सो यू हैव टू मेमोराइज दिस थिंग्स, ओके। मोनोडेंटेड लिगैंड कौन से हैं? इन दैट वे जस्ट मेमोराइज कि कितने डोनर एटम प्रेजेंट है, कितनी साइड्स ऑफ अटैचमेंट है, सो दैट कि जब हम आगे कॉम्प्लेक्स पढ़े तो हमें दिक्कत ना हो। चार्जेस भी याद रखना, ओके। अभी EDTA पे कितने चार्ज होगा? इथिलीन डायमाइन टेट्राएसिटेट, इट इज टेट्रा नेगेटिव, ओके, दिस 1 2 3 4, तो ये याद रखना। देन एम्बिडेंटेड लिगैंड, नाउ ये ना बहुत ही अलग तरीके का लिगैंड है, दैट इज द लिगैंड व्हिच हैज 2 डोनर एटम। इसके पास डोनर एटम तो 2 है, लेकिन either of the donor atom will donate its electron pair to form a coordinate bond with your metal ion. Consider कीजिए NO2 negative, okay, basically this is a monodentate ligand, right, but इसमें 2 डोनर एटम है, कौन से? नाइट्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो अगर मेटल एटम, अगर नाइट्रोजन ने डोनेट किया इलेक्ट्रॉन पेयर, ओके, सो बॉन्ड किसके साथ बनेगा? नाइट्रोजन के साथ बनेगा, राइट। और अगर ऑक्सीजन ने डोनेट किया तो बॉन्ड किसके साथ बढ़ेगा? ऑक्सीजन के साथ बनेगा। मतलब कैपेबिलिटी दोनों एटम्स में है टू डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर टू द मेटल एटम, लेकिन एक टाइम पे एक ही डोनर एटम डोनेट करेगा। मतलब अगर NO2 में से नाइट्रोजन ने डोनेट कर दिया तो नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन नहीं डोनेट करेगा, और अगर ऑक्सीजन ने डोनेट कर दिया तो नाइट्रोजन डोनेट नहीं करेगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं एम्बिडेंटेड लिगैंड। मतलब देयर आर 2 डोनर एटम्स, दे बोथ हैव कैपेबिलिटी टू डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर टू योर मेटल एटम, लेकिन दोनों में से एक ही कर रहा है, राइट। तो अभी क्या होगा यहाँ पे? तो इस तरीके का जो आयन, इस तरीके के जो लिगैंड्स होते हैं, that are known as ambidentate ligands. It links to the metal ion through nitrogen or oxygen. Fine. नेक्स्ट टाइप सिमिलर का अगर हम देखें तो HCN निगेटिव, इसमें भी देयर आर 2 डोनर एटम्स, एक है नाइट्रोजन और एक है सल्फर। मतलब मेटल कैन फॉर्म बॉन्ड विथ नाइट्रोजन ऑल्सो एंड मेटल कैन फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ सल्फर ऑल्सो। इस तरीके से NCS या फिर SCN, राइट।
साइनाइड इज ऑल्सो मोनोडेंटेड लिगैंड. मेटल CH कार्बन के साथ भी बॉन्ड बना सकता है और मेटल नाइट्रोजन के साथ भी बॉन्ड बना सकता है. ओके, सो दिस इज ऑल्सो मोनोडेंटेड लिगैंड. तो मोनोडेंटेड लिगैंड के एग्जाम्पल्स याद रखना. जनरली एम्बिडेंटेड लिगैंड आर मोनोडेंटेड लिगैंड ओनली. ओके, CN भी एम्बिडेंटेड लिगैंड ही है, तो दे आर मोनोडेंटेड लिगैंड ओनली, क्योंकि वो एक ही डोनर एटम से बॉन्ड बना रहा है, एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है वहां पे. ओके, बट all monodentate ligands are not ambidentate ligands. ये चीज याद रखना. Ambidentate ligands are monodentate ligands, but all monodentates are not ambidentate. तो specifically कभी कभी ambidentate ligand पे नोट भी आती है. तो that note you have to write the definition of ambidentate ligand, examples of ambidentate ligand, and you have to show this bonding. कि अगर नाइट्रोजन के साथ होता है तो कैसे बॉन्ड होगा, अगर ऑक्सीजन के साथ होता है तो कैसे बॉन्ड होगा, राइट? कितने डोनर एटम है, एंड आइदर ऑफ देम हैव द कैपेबिलिटी टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद अ मेटल एटम, बट फॉर द मोमेंट ओनली वन एटम विल फॉर्म अ बॉन्ड. एक ने बना दिया तो बना दिया, फिर दूसरा नहीं बनाएगा. बट इन केस ऑफ बाइडेंटेट ट्राइडेंटेट में क्या हो रहा था, दो डोनर एटम है तो दोनों बॉन्ड बना रहे थे, है ना? इथिलीन डायमीन में क्या हो रहा था, यहाँ पे NH2 है, यहाँ पे NH2 है, दो डोनर एटम है, दोनों के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और दोनों ही बॉन्ड बना रहे हैं, राइट? बट एम्बिडेंटेट में दो देयर आर टू डोनर एटम्स, लेकिन बॉन्ड कौन बनाएगा, सिर्फ एक ही डोनर एटम बनाएगा. दिस थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड. So this is all about ligands, okay? Monodentate, polydentate and ambidentate. In polydentate there are different types: bidentate, tridentate, tetradentate, hexadentate. Just memorize the example of each of them. और आपको definitions याद रखनी है उसकी. Okay, charges याद रखना है ligands के, किस पे कितना charge है, whether it is negative, whether it is neutral. Okay, now ethylene diamine is neutral. इथिलीन डायमीन पे कोई चार्ज नहीं होता. अगर हम ऑक्सलेटो की बात करें, OCO निगेटिव, एंड यहाँ पे OCO निगेटिव, तो इस पे डाई निगेटिव चार्ज है, राइट? तो ये चार्जेस आपको याद रखने हैं, सो दैट व्हेनेवर वी कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट तो हमें याद रहे. NO2 निगेटिव है, सिंगल निगेटिव चार्ज है. HCN सिंगल निगेटिव चार्ज है. साइनाइड पे भी एक निगेटिव चार्ज है, राइट? Then you have halogens जिसपे single negative charge है, hydroxide पे एक negative charge है. So this charge you have to memorize, okay? And I hope introductory part is clear to all of you. बहुत ही simple है unit, but हाँ conceptual understanding अगर हो जाती है तो आपको लिखने में भी बहुत आसानी होगी, ठीक है? MCQs में ligand के ऊपर बहुत सारे questions आते हैं, so be clear with ligands only, okay? क्योंकि आगे का पूरा unit इसी पे based है. ये जितना अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जितना अच्छे से आ जाएगी, उतना अच्छे से हमें आगे प्रिपरेशन के लिए आसानी होगी. ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग. थैंक यू सो मच.